I am Dr. W. Gunule from Kamala Nehru Mahavidyalaya, Nagpur. Today we are going to discuss the classification of polymers on the basis of intermolecular forces and also on the basis of mode of polymerization. Already we have discussed the classification based on the method of synthesis and what is polymer, what is the monomer, and what is meant by the polymerization. So all these things already we have discussed, and now we are discussing the another type of classification of polymers. As we know, polymer is a high molecular mass compound which is formed by the combination of large number of small molecules, and monomer is a small unit which repeat in the polymer, and polymerization is a process by which the polymer is formed from the monomer. So monomer is converted into polymer, or low molecular mass is converted into high molecular mass compound by the process which is known as polymerization. And in case of the classification based on the mode of polymerization, there are three types of polymer. One is addition polymerization, second is condensation polymerization, and third is the ring opening polymerization. And in case of based on the intermolecular forces, there are four types of polymer, and first one is the elastomer, second is a fiber and thermoplastic, and fourth is the thermosetting polymer. So different examples and their classification we are discussing in today's presentation. So today's topic is the introduction to polymer chemistry. This is part number 2. In first part we were discussed already what is polymer, polymerization, and classification of the polymers. And in today's part we are discussing the classification of polymer on the basis of mode of polymerization, and on the basis of there are three polymers: addition, condensation, ring opening polymerization. And second, another classification of polymer on the basis of intermolecular forces, and based on these intermolecular forces there are four types. One is elastomer, second fiber, third thermoplastic polymer, and number 4 thermosetting polymers. So first is the classification of polymer on the basis of mode of polymerization, and based on this mode of polymerization there are different types of polymer. And as we know that based on this there are three types of different polymers, and here on the basis of mode of polymerization, as we know what is polymerization. Polymerization is a process of converting monomer into polymer. So this is a simple process of formation of polymer, and we know that in case of polymer science and technology there is a totally we can say that different place are there without polymers, and some polymers are artificial fibers, plastic and elastomer, and some polymer chemistry is a we can say that it is a separate branch of chemistry. And in this case from the last several decades, and this field of polymer chemistry have increases the application in everyday life, and we can say that number of applications are there of these polymers. And here on the basis of this now on the mode of polymerization, and this mode of polymerization or polymerization is a fundamental process, and here low molecular mass compound is converted into the high molecular mass compound, and in this case linking is taking place between the repeating unit structure, and one unit link with the other and other link with the third. In this way there is a linking between the repeating unit is taking place and forming the covalent bonds. So based on the mode of polymerization there are three types of polymers: addition polymerization, second is a condensation polymerization, and third is a ring opening polymerization. So we can say that what are these first one is the addition polymerization. Addition polymerization is also known as chain growth polymerization,
and second condensation polymerization is also known as step growth polymerization, and third is the ring opening polymerization. So these are the three types. These are important three types based on the mode of polymerization. So we can also classify. तो पॉलीमर को तीन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन कौन सी है पॉलीमराइजेशन मेथड, वो बेस पे तीन टाइप के पॉलीमर्स है. पहला है एडिशन पॉलीमराइजेशन, सेकंड है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड थर्ड है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. तो ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है. और एडिशन पॉलीमराइजेशन सिंपली बाय एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट we get the polymer, and this process is known as the addition polymerization. So what is there in case of the chain growth polymers, or also we can say that in case of addition polymerization. As we know, in case of addition polymerization, addition of the monomer unit without any loss of the small molecules taking place, and this addition of polymer or addition polymer formed by the combination of these small units is the we can say that it is the addition polymerization. And compound which contain double bond undergo this addition polymerization. So addition is taking place, but the compound which contain the double bond undergo such type of addition polymerization. Sometimes this addition polymerization is also known as vinyl polymerization. उसको क्या बोलते हैं, विनाइल पॉलीमराइजेशन, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द मोनोमर्स आर फ्रॉम विनाइल कैटेगरी. एंड एग्जांपल्स आर देयर, विनाइल क्लोराइड. सो हियर इट इज शोन विनाइल क्लोराइड आर द एग्जांपल्स, एंड अनदर विनाइल हियर acrylonitrile, vinyl chloride and acrylonitrile. Vinyl chloride have the formula CH2 double bond CHCl, and acrylonitrile have the formula CH2 double bond CHCl. So these are the two compound example of vinyl, and here from this, by using this monomer, polymer is formed, which is and the process is known as the vinyl polymerization. उसको बोलते हैं vinyl polymerization. So this is vinyl category. Another example of addition polymerization is the formation of polyethylene, and polyethylene is obtained from ethylene. It is the addition polymerization. Again, what is the other example? Formation of polyethylene from ethylene. Ethylene and undergo polymerization forming polyethylene. So this is important and another example of addition polymerization. And generally it is observed that addition polymerization produces high molecular mass compound without formation of any intermediate. And one more here, that is free radical is shown. Free radical mechanism is most important in case of addition polymerization, and therefore it is also known as chain reaction, and it involves the three steps, and these three steps are chain initiation, second is chain propagation, and third is chain termination, and therefore addition polymerization is also known as chain propagation, or also known as chain growth polymerization, or chain growth polymers are obtained. So this free radical polymerization is very important and generally found in addition polymerization. And this free radical mechanism also known as the chain reaction, and it involves three steps, and the three steps are chain initiation, propagation and termination. In case of free radical mechanism is consist of three steps. तो इसमें तीन स्टेप होते हैं. पहली स्टेप है चेन इनिशिएशन. सबसे पहले ये क्या है, चेन रिएक्शंस आर फाउंड इन एडिशन पॉलीमराइजेशन. सो नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर. विनाइल कैटेगरी वन एग्जांपल, second formation of polyethylene, other example of addition polymerization, and third is the free radical mechanism is the most common in case of addition polymerization. तो ये अलग अलग एग्जाम्पल ध्यान में रखना है. और अभी जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है
ये इसमें ये कॉमन है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और उसमें कितने स्टेप्स है? 3। तो चेन इनिशिएशन क्या होता है, चेन प्रोपेगेशन क्या होता है, एंड चेन टर्मिनेशन कब होता है, वो अभी अपने को देखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? चेन इनिशिएशन। तो चेन इनिशिएशन में क्या होता है? we have to start from the some, what is the here acetyl peroxide compound is shown here. So this chain reaction initiated by free radical. So and free here initiator करके अपन एक कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। ये दो कंपाउंड दिया है इसमें, बेंजाइल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटिल पेरोक्साइड। ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, कैटलिस्ट बोलो या फिर इनिशिएटर का काम। कैटलिस्ट पता है ना आपको, कैटलिस्ट जनरली यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन का जो स्पीड है बढ़ाता है। और इसमें ये जो चेन रिएक्शन होती है, फर्स्ट कौन सी है? चेन इनिशिएशन। तो चेन रिएक्शन में इनिशिएटर इंपॉर्टेंट है, इनिशिएटर बोलो उसको या फिर कैटलिस्ट बोलो। एंड कौन सी यूज कर सकते हैं? बेंजाइल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटिल पेरोक्साइड कैन बी यूज। एंड ये जो इनिशिएटर यूज करने के बाद चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है एंड वी गेट द फ्री रेडिकल। इसमें क्या मिलेंगे? सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टार्ट हो गई तो क्या मिलता है? फ्री रेडिकल। तो स्टार्ट फ्रॉम दी हियर एंड वी गेट द फ्री रेडिकल। एग्जांपल इसमें दिया है एसिटिल पेरोक्साइड, हियर जनरेट मिथिल रेडिकल। तो मिथिल रेडिकल, ये देखो रेडिकल मतलब यहाँ पे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा है, ये रेडिकल मिथिल रेडिकल। तो अल्किल रेडिकल जैसा R डॉट, तो ये एग्जांपल है मिथिल रेडिकल। तो ये जो एसिड पेरोक्साइड है, एसिटिल, एसिटिल ग्रुप कौन सा होता है? CSE CO ग्रुप। तो एसिटिल, और ये कौन सा लिंकेज है? पेरोक्साइड। जैसा हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिंकेज उसमें होता है OO, वैसा यहाँ पे भी पेरोक्साइड लिंकेज है OO, दैट इज नोन एज, इसका नाम है एसिटिल पेरोक्साइड। तो एसिटिल ग्रुप कौन सा होता है? CSE CO, और ये कौन सा लिंकेज है? पेरोक्साइड। तो एसिटिल पेरोक्साइड इज द इनिशिएटर। अपने को क्या मिलता है? मिथिल रेडिकल। देखो यहाँ पे, तो ये CSE CO, देखो CSE COO, CSE COO, CSE COO। तो ये कंपाउंड, 2 कंपाउंड मिल गए। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CSE CO, ये फ्री रेडिकल मिला। लेकिन ये शिफ्ट होता है रेडिकल एंड व्हाट इज नाउ हियर, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आता है और यहाँ का ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये CH3 निकलता है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो ये बॉन्ड फॉर्म होता है और ये CO2 मॉलिक्यूल क्या होता है? ये निकल जाता है। माइनस CO2, अगर ये CO2 निकल गया तो क्या मिलेगा? CH3 फ्री रेडिकल। तो इस टाइप से ये पहली स्टेप है चेन इनिशिएशन। तो चेन इनिशिएशन में अपने को इनिशिएटर चाहिए, कैटालिस्ट चाहिए टू स्टार्ट द रिएक्शन। तो चेन स्टार्ट हो जाती है, इनिशिएट एक बार चालू हो गई तो फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप। तो इन द फर्स्ट स्टेप, ये पहली स्टेप में अपने को क्या मिलता है? चेन इनिशिएशन चालू हो जाता है और फिर इसमें अपने को फ्री रेडिकल मिलता है। जनरली फ्री रेडिकल कैसे दिखाते हैं? R डॉट, R का मतलब अल्किल, तो मिथिल हो सकता है, इथिल हो सकता है, प्रोपिल, लाइक दैट। तो यहाँ पे R का मतलब अल्किल, अल्किल R मतलब जनरली वी रिप्रेजेंट, दिस इज सिंबल R फॉर अल्किल, एंड R की जगह भी क्या है? यहाँ पे एग्जांपल दिया मिथिल, इथिल भी हो सकता है। वहाँ पे इसको बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R डॉट। सो नाउ दिस, ये जो फ्री रेडिकल है ये रिएक्टिव होता है एंड ये जो रिएक्टिव फ्री रेडिकल होता है इट अटैच टू द ओलेफिन, that is vinyl monomers, and produces another new radical. And so here in another unit of the vinyl monomer or any other monomer, and it forms another free radical. तो second step start हो जाती है chain propagation। तो chain propagation का मतलब क्या होता है? chain बढ़ते जाती है, मतलब ये जो free radical है ये फ्री रेडिकल दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट होता है और फॉर्मिंग अनदर फ्री रेडिकल। फिर वो जो फ्री रेडिकल है वो तीसरे मॉलिक्यूल के साथ, मोनोमर के साथ कंबाइन रिएक्ट होता है एंड फॉर्मिंग फ्री रेडिकल। तो इस टाइप से वो एक एक 1 by 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर अटैच टू दिस फ्री रेडिकल एंड वी गेट द चेन। क्या होता है? बढ़ते जाती है। ऐसे ये जो स्टेप है इसको बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब चेन बढ़ते जाती है, इंक्रीज होती जाती है। कैसी होती है? सेकंड स्टेप में देखो। तो सेकंड है ये एडिशन पॉलीमराइजेशन ही है, लेकिन इसमें ये जो फ्री रेडिकल मिला था अपने को, ये क्या है? ये विनाइल मोनोमर है,
ये विनाइल, Y में मतलब CH2CHCl या कोई भी ले सकते हैं, विनाइल क्लोराइड जैसा। तो ये विनाइल मोनोमर है, दिस इज विनाइल ग्रुप एंड अल्किल यहाँ पे अटैच हो जाता है। देखो कंपाउंड ऐसा इस टाइप का मिलता है, ये न्यू रेडिकल मिल गया, फ्री रेडिकल। तो RCH2CHY ये बॉन्ड सिंगल है क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये जो डबल बॉन्ड था एक बॉन्ड ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये अटैच हो जाता है। तो इस टाइप से ये न्यू रेडिकल फॉर्म हो जाता है और दिस इज अनदर न्यू रेडिकल फॉर्म्ड। तो फर्स्ट स्टेप में अपने को पहले अल्किल फ्री रेडिकल मिलता है, उसके बाद में न्यू फ्री रेडिकल मिल जाता है। तो ये फ्री रेडिकल अभी यहाँ पे चेन प्रोपेगेशन में अपन इसमें इसको लेंगे। तो चेन प्रोपेगेशन में क्या होता है, द न्यू रेडिकल फॉर्म्ड जो नया अपने को मिला अभी, इट अंडरगो इनिशिएशन स्टेप रिएक्शन एंड रिएक्ट विद द अनदर मॉलिक्यूलर विनाइल मोनोमर। तो अभी दूसरा एक मोनोमर है, यहाँ पे देखो जैसा एक कंपाउंड अपन ने लिया न्यू रेडिकल, this is free radical, new radical react with the another molecule of this monomer, that is vinyl monomer, and forming this type of chain and this group CH2CHY it is get repeated। अभी ये मिल गया न्यू रेडिकल दूसरे मोनोमर के साथ, फिर से ये मिला, ये फ्री रेडिकल है, फिर से तीसरा मोनोमर, फिर से फ्री रेडिकल, फिर चौथा, इस टाइप से ये चेन बढ़ते जाएगी, इसी को बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन। तो ये चेन रुकती नहीं है, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन, मतलब मोनोमर अटैच होता है फ्री रेडिकल को, नया फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, फ्री रेडिकल रिएक्ट होता है, मोनोमर को अटैच करते जाता है और ऐसा लॉन्ग चेन, दैट इज चेन प्रोपेगेशन इज टेकिंग प्लेस। दिस स्टेप इज वेरी रैपिड, बहुत फास्ट होती है बिकॉज फ्री रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव एंड गिव दी हाई मॉलिक्यूलर मास रेडिकल। तो हाई मॉलिक्यूलर मास रेडिकल ये बढ़ती जाती है, चेन बढ़ती जाती है, फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास रेडिकल इज फॉर्म्ड एंड देन टर्मिनेशन कैन टेक प्लेस। तो थर्ड स्टेप आती है फिर चेन टर्मिनेशन। तो वन स्टेज विल कम at which the termination of this chain can take place and it may occur in several process। तो इसमें देखो यहाँ पे the one mode of termination is the combination of two growing chain radical। दो रेडिकल अगर ऐसे कंबाइन हो गए तो टर्मिनेशन हो जाता है। यहाँ पे बताया है कि दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ रेडिकल हियर एंड ये दो लिया है, तो ऐसे दो अगर रेडिकल लॉन्ग चेन रेडिकल कंबाइन हो गए तो क्या मिलता है, फिर देखो ये there is no any free radical, no further reaction can take place, so termination of the chain is taking place, so we get here polymer। तो ये दो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे R, ये CH2CHY और फिर इसमें CHY और CH2, ये N+1, ये प्लस एक प्लस होते जाता है और इस टाइप का ये लॉन्ग चेन मिलेगा। दिस इज नोन एज द पॉलीमर। पॉलीमर इज द हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो इस टाइप से ये फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल मिलता है और फ्री रेडिकल अंडरगो द चेन प्रोपेगेशन विद द मोनोमर एंड लॉन्ग चेन ऑफ फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड, वन बाय वन मोनोमर गेट अटैच्ड एंड इन थर्ड स्टेप टर्मिनेशन इज टेकिंग प्लेस। वन एग्जांपल इज गिवन हियर, दैट इज द टर्मिनेशन इज टेकिंग प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रोविंग चेन रेडिकल्स। तो अपन ये चेन ग्रोविंग है, यहाँ पे बहुत सारी ये n टाइम रिपीट होती है जब दोनों चेन फ्री रेडिकल कंबाइन होते हैं, तो उसके बाद में ये पॉलीमर फॉर्म हो जाता है। पॉलीमर इज अ हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। सो इस टाइप से ये तीन स्टेप्स हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के, एक है इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। इसीलिए इसको बोलते हैं, ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है इसको बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। सो इन केस ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, so in this is here this is third step and here now you can also see that audiovisual free radical mechanism of addition polymerization, and here on the here on YouTube channel here is given animation about this free radical mechanism. So go to this YouTube and watch it. After this now second is the condensation polymerization. So what is meant by the condensation polymerization, and in case of condensation polymerization we can say that it is also known as step growth polymers. Step by step there is a growth in the polymer chain, and now as the name suggests
The step growth polymerization involves stepwise intermolecular condensation taking place through the independent reactions, and each reaction involves condensation process, and there is a loss of simple molecule like ammonia, water, alcohol, HCl, etc. This type of polymerization occurs if the monomer molecules have more than one similar or dissimilar functional group. And this type of polymerization or step growth polymerization is given, one example is given here how it is taking place. So here consider the formation of pterylene polyester polymer from the ethylene glycol and the terephthalic acid. So here this is ethylene glycol, this is CH2 क्या है ethylene, दो OH है तो glycol, तीन है तो ग्लिसरॉल, एक है तो अल्कोहल. तो रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स. तो ये इथिलीन और दो OH है तो ग्लाइकॉल. इथिलीन ग्लाइकॉल और ये जो कंपाउंड है डाइबेसिक एसिड है, यहाँ पे बेंजीन रिंग, ये COH ये एन टाइम इसको लिया है. तो ये जो ये कंपाउंड है उसको बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड. एंड इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड अंडरगो पॉलीमराइजेशन. व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? एंड देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो ये वाटर मॉलिक्यूल देखो n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकलते हैं. तो n कैसे वाटर कैसा निकलता है? ये अल्कोहल OH और ये H, कार्बोक्सिलिक एसिड का H, और यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है ये देखो H2 निकलता है n नंबर. तो ये n नंबर है, ये भी n नंबर है, n टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज. तो ये OH H वाटर निकलता है और फिर ये लॉन्ग चेन ये देखो फॉर्म हो जाता है. ये OH फिर CH2 उसके बाद में यहाँ पे ये H गया, OH गया, तो ये OOC और उसके बाद में रिंग और COOH इस टाइप से. लेकिन इसमें जो ये जो ग्रुप है CH2 और ये जो ग्रुप है n टाइम रिपीट होता है. इसको बोलते हैं ईस्टर लिंक. ये वाला जो ग्रुप दिखा रहा है ये कौन सा है? ईस्टर बताया ना, CO मतलब कीटोनिक कार्बोनिक, और COO क्या बोलते हैं? ईस्टर ग्रुप. तो दिस ईस्टर ग्रुप इज शोन हियर. सो दिस इज द ईस्टर लिंक. ये दोनों के बीच में होता है. और ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ये जो पॉलीमर फॉर्म हुआ उसका नाम क्या है? टेरिलीन और डेक्रान. टेरिलीन का दूसरा नाम है डेक्रान. सो टेरिलीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाय यूजिंग इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड एंड देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर. सो कंडेंसेशन में क्या होता है? देयर इज अ लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, स्मॉल अल्कोहल लाइक दैट. तो दिस इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, आल्सो नोन एज chain growth polymerization, or what is step growth polymerization. So condensation polymerization is also known as step growth polymerization because step by step there is a growth in the polymer chain, and these polymers formed by the step growth polymerization, and therefore this is also known as step growth polymers. And example of this type of condensation polymers are condensation polymer like Dacron, nylon, bakelite are formed by this type of polymerization. तो ये एग्जांपल्स हैं. और थर्ड टाइप है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. तो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में इज टेकिंग प्लेस. तो एग्जांपल भी दिया है, इसमें रिएक्शन भी दिया है. तो इसमें होता है इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिंग ओपनिंग कैन टेक प्लेस. इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड लाइक lactam or cyclic ether or lactone, and polymerized by the ring opening polymerization. So here polymer is formed by the opening of the ring and strong acid or base catalyze the reaction. And here example is given, that is the polymerization of E-caprolactam. And see, this is the E-caprolactam. So this bond get break. ये CO के बाजू में जो है अल्फा, फिर बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन. सो ये जो बॉन्ड है NH और CO के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक होता है. ये रिंग कंप्लीट फॉर्म है, यहाँ से रिंग ओपनिंग हो जाता है एंड वी गेट दिस टाइप ऑफ पॉलीमर कंपाउंड. तो फिर यहाँ पे NH CH2 कितने 5 है, 1 2 3 4 5. यहाँ पे नहीं मतलब CH2 है, ये CH2 5 और CO n टाइम ये रिपीट होते जाता है. सो बाय ओपनिंग रिंग, this is one example of ring opening polymerization, and in this case repeating unique in the polymer result from the ring opening polymerization.
is same that of the monomer. Addition polymerization are often very rapid, but ring opening polymerization proceed by addition of single monomer unit and to the grooving chain molecule. In this case, ring opening polymerization is a स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन सिमिलर टू द कंडेंसेशन. तो जैसा कंडेंसेशन होता है वैसा यहाँ पे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है स्टेप बाय स्टेप. तो ये रिंग ओपनिंग से क्या होता है, पॉलीमराइजेशन का आल्सो टेक प्लेस एंड दिस इज वन एग्जांपल. ओपनिंग द रिंग, व्हाट इज, वी गेट द लॉन्ग चेन पॉलीमर्स. This is one example given how it opens and forming n types of it get repeated. So this is the polymer formed. And now first classification based on mode of polymerization. Three types are there: addition polymerization, condensation and ring opening polymerization. Another classification of polymer is on the basis of intermolecular forces, and based on intermolecular forces we can say that the mechanical properties of the polymer such as tensile strength, toughness, elasticity depends upon the intermolecular forces. इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है उसके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज होती है. पॉलीमर्स अलग अलग टाइप के होते हैं एंड इन दिस केस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, वांडर वाल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन द माइक्रोमोलिक्यूल्स. These intermolecular forces are present in simple molecules, but their effect is less significant as compared to that in the macromolecules. It is because of the fact that in polymer there is a combined effect of these forces along the long chain. Longer the chain, more intense is the effect of intermolecular forces. तो जितनी long मतलब longer the chain, more intense is the effect of the intermolecular forces. तो ज़्यादा effect होता है. And polymers are classified into four categories on the basis of magnitude of intermolecular forces present in the molecules or the present in them. So these four types of polymers are elastomer, second is fiber, third है thermoplastic and fourth है thermosetting polymer. तो पहला कौन सा है, इलास्टोमर. इलास्टोमर इज, तो चार टाइप में से पहला है इलास्टोमर. And elasticity is the property of the substance, and because of that there is a stress. We can you know that rubber, आपको पता है सभी को elasticity होती है रबर में, उसको स्ट्रेस कर सकते हैं और also वो अपने स्ट्रेस छोड़ दो तो अपने जगह पे मतलब ओरिजिनल पोजीशन में भी आ जाता है. तो अपन व्हाट इज, कोई पूछेगा तो व्हाट इज इलास्टोमर, तो we can say that these are the polymer having elastic character. What is elastomer? These are the polymer having elastic character. Elastic मतलब रबर को अपन ये करते हैं, खींचते हैं तो क्या होता है, लॉन्ग हो जाता है, फिर से उसको छोड़ो तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है. तो दिस पॉलीमर चेन in this polymer are held together by the weakest intermolecular force. इसमें क्या होता है, इलास्टोमर में weakest intermolecular force होता है. These forces permit the polymer to be stretched under stress, but they regain their shape when the stress is relieved. तो जैसा खींचोगे तो स्ट्रेस लंबा हो जाएगा, फिर से छोड़ेंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. Therefore we can say that these forces permit, these weakest intermolecular forces are there, and these forces permit the polymer to be stretched under stress, but they regain their shape when the stress is relieved. Rubber, synthetic and natural, is the best known example of elastomer. The elasticity of such polymer is modified by some examples are there of cross link between the chain. So उसको modify कर सकते हैं अपन, लेकिन उसमें कुछ ऐसा मटेरियल ऐड करना पड़ेगा. तो क्रॉस लिंक होने चाहिए उसमें, तो क्या उसके प्रॉपर्टीज या उसकी इलेक्ट्रिसिटी अपन क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई. Example is there, natural rubber, gummy material, has poor elasticity. It is polymer of isoprene, and one scientist is there, what is the name, Charlie Goodyear, discovered that heating gummy rubber with sulfur produced a material which was no longer sticky but had
मॉडिफाइड इलास्टिसिटी, उसकी इलास्टिसिटी मॉडिफाई कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया है। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, वल्कनाइज रबर। तो अगर उसकी इलास्टिसिटी का मॉडिफाई करते हैं बाय एडिशन ऑफ सम अदर सब्सटेंस, तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, वल्कनाइज रबर। तो व्हाट डू यू मीन बाय वल्कनाइजेशन? तो वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर इंट्रोड्यूसेस सल्फर क्रॉस लिंक। तो उसमें क्या होता है, नेचुरल रबर में अगर सल्फर ऐड कर दो तो सल्फर क्रॉस लिंक हो जाता है, which help to align the polymer chain in such a way that the material does not undergo permanent change when stretched, but spring back to original shape and size after the stress is removed. And it is shown also in the figure. The cross link of the sulfur in isoprene rubber unit is vulcanized rubber have been shown. And उसको कैसे दिखाते हैं, ये डायग्राम में दिखाया है इलास्टोमर के इसमें। तो ये देखो, इसमें ये नेचुरल रबर है, इसमें थोड़ा इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं होती है, तो उसके ये इसको मॉडिफाई कर सकते हैं नेचुरल रबर को। सल्फर क्रॉस लिंक ये देखो, ये जैसा नेचुरल रबर है इसमें सल्फर ऐड किया, थोड़ा हीट किया, देखो ये क्रॉस लिंक हो गई है। ये जो नेचुरल रबर था उसमें क्रॉस लिंक ऑफ सल्फर इज शोन, इसमें दिखा दिया है। तो इसको बोलते हैं वल्कनाइज रबर। एंड ये जो स्ट्रक्चर होता है सल्फर कैटालिस्ट करके और हीट कर, ये जो नेचुरल रबर ये दिखाया है, ये दिस इज नेचुरल रबर। स्ट्रक्चर कैसा होता है नेचुरल रबर का, ये दिखाया है। ये ऐसी तो ऐसा लाइन दिखाया है, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा होता है। देखो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये देखो इसमें भी इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, CH2CH डबल बॉन्ड CH, ये स्ट्रक्चर है नेचुरल रबर। तो ये नेचुरल रबर में सल्फर और कैटालिस्ट ऐड कर दिया, सल्फर ऐड करने के बाद कैटालिस्ट है हीट किया थोड़ा, तो देखो स्ट्रक्चर कैसा रहता है। ये दिस इज वल्कनाइज्ड रबर कंटेनिंग क्रॉस लिंक ऑफ सल्फर। तो ये क्रॉस लिंक कैसा होता है, देखो यहाँ पे CH, ये सल्फर क्रॉस लिंक, ये सल्फर क्रॉस लिंक, ये स्ट्रेच, ये बताया स्ट्रेच कैसा है। तो ये देखो इस टाइप से होता है, यहाँ पे स्ट्रेच करते हैं तो ये देखो स्ट्रेच करने के बाद ये स्ट्रेच है और ये अनस्ट्रेच है, सल्फर क्रॉस लिंक। तो कैसा दिखता है पॉलीमर, तो ये स्ट्रेच है और ये अनस्ट्रेच है। तो इसको अगर ये रबर को अगर स्ट्रेच करोगे तो इस टाइप से दिखेगा, और नहीं तो अनस्ट्रेच है तो इस टाइप से दिखेगा। तो आपने रबर बैंड भी देखा होगा, राउंड होता है, फिर उसको स्ट्रेच करो तो इस टाइप का दिखेगा, नहीं तो फिर इस टाइप से भी दिख सकता है। तो ये जो दिख रहे हैं ये सल्फर है, तो ये क्रॉस लिंक होता है। तो ये फिगर में क्लियर बताया हाउ सल्फर क्रॉस लिंक विद दी नेचुरल रबर चेन। उसके बाद में ये देखो, ये जो आपने पता है ना, ये रबर बैंड्स होते हैं, अपन लगाते कोई पैकेट को, देखो ये राउंड है, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं तो वैसा दिखेगा। एंड इन दिस वे ये है नेचुरल रबर में थोड़ा सा सल्फर ऐड कर दो तो क्या मिलता है, इस टाइप से ये रबर बैंड है, ये है इलास्टोमर। तो इलास्टोमर में एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। सेकंड एग्जांपल है फाइबर। तो फाइबर क्या होता है नाउ, पॉलीमेरिक सॉलिड विच फॉर्म थ्रेड लाइक कंपाउंड विच इज कॉल्ड फाइबर। थ्रेड जैसा होता है, ये जैसे थ्रेड दिख रहे हैं, देखो ये एग्जांपल है, फाइबर्स उसको बोलते हैं। एंड दिस फाइबर वी कैन से दैट what is if someone asks what is fiber, so we can say that these are the polymer which have quite strong interparticle or interparticle forces. उसमें क्या होता है, they have strong interparticle forces like hydrogen bond. They have high tensile strength, high modules. They are thread like polymer and can be woven into fabrics. जैसे कपड़े के जैसा उसको सिला सकते हैं, देखो उसमें दिया है। Nylon, Dacron, silk are some common example of this type of polymer. The hydrogen bond in the nylon 66 is shown also. हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है नाइलॉन 66 में, वो इसमें वो भी बताया है। तो ये जो फाइबर्स है ये थ्रेड लाइक होता है। फाइबर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ and which is property to have resistance to breaking under tension. This characteristic is due to strong intermolecular forces like hydrogen bonding and strong dipole-dipole forces. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग डाइपोल-डाइपोल फोर्सेस ये फाइबर्स में होता है। ये देखो फिगर बताया है, ये जो स्ट्रक्चर है फोर्सेस ऑफ फाइबर है, जनरली इट इज अ फोर्सेस फॉर हियर एग्जांपल इज शोन हियर। ये थ्रेड लाइक सब, ये अलग अलग कलर भी होते हैं। और ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होता है, ये जैसा एक चेन है, दिस इज अनदर चेन
एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखो, ये हाइड्रोजन है, ये डैश डैश जो दिखा है ये NH ग्रुप है, और यहाँ पे ये जो CO यहाँ का है, यहाँ का NH, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये डैश डैश जो दिखाया है यहाँ पर, दिस डैश डैश इज नथिंग बट द हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा फॉर्म होता है? बिटवीन दो एटम के बीच में, एक होता है हाइड्रोजन फिक्स और सेकंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, लाइक दैट। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस टाइप से फॉर्म होता है। एक तो फिक्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, वन इज हाइड्रोजन एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दिखा है, ये देखो, ये ऑक्सीजन इसका है और इधर ये ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल का है, तो यहाँ पे NH। तो इस टाइप से ये इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस they have high tensile strength and other properties. So this is fiber, and this is the, in this figure shown hydrogen bonding in the nylon 66. So this is nylon 66 polymer, and उसमें ये दो molecules है, उसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। इसीलिए क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वो ज़्यादा मॉलिक्यूल को अटैच करता है, एंड therefore the properties are different. उसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। थर्ड टाइप है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक, थर्मो मीन्स हीट, तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर किसको बोलेंगे अपन? तो इसमें ये बता सकते हैं अपन, देयर आर द पॉलीमर्स विच कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप। अपन जैसा शेप चाहिए, जैसा मिनरल वाटर बॉटल्स है, ये देखो पानी पीने की बॉटल्स होती है, अलग अलग बिस्लरी है या कोई बॉटल्स है, वी कैन गिव द शेप स्मॉल, लार्ज एंड शेप एज वी लाइक. So these are the polymer which can be easily molded into desired shape by heating and cooling to the room temperature. उसको हीट भी कर सकते हैं, कूल भी कर सकते हैं, तो इस टाइप से उसको ऐसे पॉलीमर को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. The intermolecular forces in thermoplastic polymers are intermediate between those of elastomer and fiber. मतलब जैसा फाइबर में स्ट्रॉन्ग है, इलास्टोमर में कम है, तो दोनों के बीच में इंटरमीडिएट है फोर्सेस. सो फोर्सेस इन दिस, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ इलास्टोमर एंड फाइबर. देयर इज नो क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द चेन, इसमें कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है. इन फैक्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड बिकम फ्लूइड ऑन कूलिंग. सो नाउ हियर important property is that thermoplastic polymers soften on heating. अगर उसको हीट करते हैं तो सॉफ्ट बन जाता है, and become fluid, but on cooling they become hard. अगर उसको कूल करते हैं तो हार्ड बन जाता है. They are capable of undergoing reversible changes on heating and cooling repeatedly. Examples of thermoplastic polymers are polyethylene, polystyrene are the examples. तो इस टाइप से ये मटेरियल है व्हाट इज नोन एज थर्मोप्लास्टिक. सो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमीडिएट है, अब जो पहले अपन ने दो देखे उसके, और एग्जांपल्स है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल, लाइक दैट. एंड उसको अगर हीट करते हैं तो क्या होता है, सॉफ्ट, एंड अपॉन कूलिंग बिकम हार्ड. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, thermoplastic polymers are capable of repeated softening on heating and hardening on cooling. तो हीट किया तो सॉफ्ट बन जाता है, फ्लूइड भी बन जाता है कभी कभी लिक्विड, और जैसा भी उसको कूल करेंगे तो इसीलिए तो उसको क्या करते हैं अपन, जैसा चाहिए उसको मोल्ड कर सकते हैं. देखो बिस्लरी बॉटल कोई इस टाइप से होती है, उसको शेप दो, छोटा करो, बड़ा करो, तो जैसा अपने को डिजाइन देना वो भी दे सकते हैं. तो इसको जैसा अपने को मोल्ड देना है, हीट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा या फ्लूइड बन जाएगा या फिर सॉफ्ट हो जाएगा. सॉफ्ट करने के बाद उसको मोल्ड में करो तो एज वी गिव डिजायर शेप, उसको जैसा शेप चाहिए वैसा अपन दे सकते हैं. तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर इजीली मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप, उसको जैसा अपने को शेप देना वैसा शेप दे सकते हैं. तो ऐसे पॉलीमर को क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. और एक बचा है लास्ट, वो है डी, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होता है, तो अपन इसमें बता सकते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर में, दीज आर द पॉलीमर विच बिकम हार्ड एंड इनफ्यूजिबल ऑन हीटिंग. हीट करने के बाद वो हार्ड होते हैं, मतलब इट इज हार्ड. थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स विच बिकम हार्ड एंड इनफ्यूजिबल ऑन हीटिंग, दे आर जनरली
made from semi-fluid substances with low molecular masses by heating in the mold. Heating result in excessive cross linking. अगर हीट करते हैं तो ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होता है बिटवीन द चेन, फॉर्मिंग 3-dimensional नेटवर्क ऑफ द बॉन्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉन फ्यूजिबल insoluble hard material is formed. Bakelite is a common example of this thermosetting polymer. Bakelite की शीट्स आती है, वो शीट में इतना क्रॉस लिंकिंग होता है, जैसा फिनल फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट होता है तो क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा होता है, एंड क्रॉस लिंकिंग के बाद में जब वो उसको हीट करेंगे तो हार्ड मटेरियल है, इन फ्यूजिबल मटेरियल, नॉन फ्यूजिबल मटेरियल, इनसोल्यूबल हार्ड मटेरियल इस फॉर्म होता है। इन शॉर्ट में अपन बोलेंगे thermoplastic material can be remelted and again without change, while thermosetting material undergo permanent change. तो अपन दोनों में अगर डिफरेंस बताएंगे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग मटेरियल, तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कैन बी रीमेल्टेड एंड अगेन विदाउट चेंज, while in thermosetting material undergo permanent change upon melting and therefore thereafter set into solid which cannot be remelted. अगर एक बार ये हार्ड मटेरियल मिलने के बाद उसको रीमेल्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन थर्मोप्लास्टिक को अपन रीमेल्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो दिस इज द थर्मोसेटिंग पॉलीमर एंड दिस इज रिजिड पॉलीमर, एंड ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ शेप ऑफ ऑन हीटिंग, उसको शेप दे सकते हैं जैसा चाहिए वैसा अपॉन हीटिंग, बट दे गेट हार्डन व्हाइल हॉट. तो once hardened, these become infeasible and cannot be softened by heating and therefore cannot be remolded. एक बार वो हार्ड बन गया उसको रीमेल्ट नहीं कर सकते. This is the characteristic property of this, and in this case there is a excessive cross linking of covalent bonds formed in the mold. So hardening or setting process when it is hot, for example bakelite, urea formaldehyde resin, phenol. The bakelite is nothing but the phenol formaldehyde resin. यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है जस्ट देयर, एंड इन विच बहुत ज़्यादा उसमें क्रॉस लिंकिंग होने से वो हार्ड बन जाता है, उसको रीमेल्ट नहीं कर सकते. एक बार बैकेलेट की जैसा बैकेलेट की शीट बन गई उसको मेल्ट नहीं कर सकते, बहुत हार्ड हो जाता है, वेरी वेरी हार्ड मटेरियल ऑब्टेन. लेकिन शेप जैसा चाहे वैसा दे सकते हैं और उसके बाद में उसको हार्ड बनने के बाद उसको फिर रीमेल्ट नहीं कर सकते. तो इस तरह से ये 4 टाइप के पॉलीमर्स है बेस्ड ऑन दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो फाइबर में कितना फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, और जैसा था इलास्टिक में, इलास्टोमा में बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और फाइबर्स में ज़्यादा है, और दोनों के बीच में है थर्मोप्लास्टिक में, और दिस इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. तो ऐसे 4 टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग अलग है सभी में, एंड दीज आर द 4 टाइप्स. उसके एग्जांपल भी अपन ने देखा है, और नेक्स्ट टाइम अपन दूसरे अलग टाइप के क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज. So today we stop here, and so we have seen different types of polymer and classification of polymer based on the mode of synthesis, mode of polymerization, and on the basis of intermolecular forces. So different types of polymers are there, and so we have seen the example. तो आज यही स्टॉप करते हैं, और फिर ये 4 टाइप के क्लासिफिकेशन अपने देखे, और 2 टाइप्स हैं वो अगले लेक्चर में देखेंगे.